معرکہ حق کے دوران شہداء اور زخمیوں کی تفصیلات جاری۔ ایس پی آر کے مطابق 6 اور 7 مئی کے دوران بھارتی اشتعال انگیزی سے 40 شہری شہید ہوئے۔ شہداء میں 7 خواتین اور 15 بچے شامل۔ 10 خواتین اور 27 بچوں سمیت 121 شہری زخمی ہوئے تھے۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں پاک فوج نے معرکہ حق کے تحت منہ توڑ جواب کا آغاز کیا۔ مادر وطن کے دفاع میں 11 جوان شہید اور 78 زخمی ہوئے۔ پاک فوج کے نائک عبدالرحمان، لانس نائک دلاور خان شہید ہوئے۔ رام اللہ، نائک وقار خالد، سپاہی محمد عدیل اکبر اور سپاہی ناصر شہداء میں شامل۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے اشتعال انگیز اور جھوٹ پر مبنی بیانات کو یکسر مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا کہ ایسے وقت میں جب عالمی برادری خطے میں امن اور استحکام کے لیے کوشاں ہے، یہ بیان ایک خطرناک اشتعال انگیزی ہے جو غلط معلومات، سیاسی موقع پرستی اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی پر مبنی ہے۔ پاکستان حالیہ سیز فائر مفاہمت پر عمل درآمد اور خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات پر کاربند ہے۔ پاکستان نے بھارت پر حملے کے لیے جوہری ہتھیار استعمال کرنے پر غور نہیں کیا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پورا یقین تھا کہ ہماری صلاحیت اتنی مضبوط ہے کہ بھارت کو زمین اور فضا میں شکست دیں گے۔ جوہری آپشن کبھی میز پر نہیں تھا۔ بھارت نے دیکھ لیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ بھارت کو علم ہو گیا تھا کہ نقصان کتنا ہو چکا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پیغام دیا کہ بھارت لڑائی روکنے کے لیے تیار ہے۔ بعض اوقات بہت سنجیدہ فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ اسلام آباد کے پاس اپنے دفاع میں حملے کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ صدر آصف علی زرداری کا بلا اشتعال بھارتی حملوں میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت۔ کہتے ہیں کہ ملک کی سلامتی کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے پر قوم افواج پاکستان کو سلام پیش کرتی ہے۔ ہمیں اپنے شہداء کی قربانیوں پر فخر ہے۔ پاکستانی قوم اور مسلح افواج بھارتی جارحیت کے خلاف سی سپلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ ہماری بہادر افواج نے قوم اور ملک کی سالمیت کا کامیابی سے دفاع کیا۔ آپریشن بنیان المرصوص سے بہادر افواج نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا معرکہ حق کے شہداء کو خراج عقیدت۔ وزیر اعظم کا ملک کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے اہل خانہ کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم کا پاک فضائیہ کے 5 اور پاک افواج کے 6 افسران اور جوانوں کی شہادت پر نذرانہ عقیدت۔ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کا بھرپور دفاع کیا۔ ہم نے پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ افواج پاکستان کے بہادر افسران اور جوانوں نے وطن سے کیا اپنا عہد پورا کر دیا۔ مجھ سمیت پوری قوم کو اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے۔ اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو قوم کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے بہادر سپوت حوالدار محمد نوید شہید وطن عزیز پر قربان۔ حوالدار محمد نوید شہید معرکہ حق کے دوران شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہوئے۔ حوالدار محمد نوید شہید کی نماز جنازہ فیصل آباد میں ادا کر دی گئی۔ حوالدار محمد نوید شہید مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ فیصل آباد میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں جنرل آفیسر کمانڈنٹ سرگودا سمیت پاک فوج کے سینئر افسران و جوانوں نے شرکت کی۔ پاک فوج کا بہادر سپوت وطن پر قربان شہید حوالدار محمد نوید کی نماز جنازہ لاہور میں ادا کی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ کی شہید حوالدار محمد نوید کی نماز جنازہ میں شرکت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا حوالدار محمد نوید کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت۔ شرکا نے شہید حوالدار محمد نوید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے شہید حوالدار محمد نوید کے جثہ خاکی کو سلامی پیش کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید حوالدار محمد نوید کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔
भारत इंटरनेशनल दहशत गर्द है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत की दहशत गर्दी के सबूत कनाडा और अमेरिका में भी मौजूद हैं। दहशत गर्दी के सबूत मुज़ाकरात में सामने आने चाहिए। पूरी दुनिया से ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। दूसरा एजेंडा मसला कश्मीर, उस पर भी बात होनी चाहिए। तीसरा एजेंडा पानी के मसले पर भी बात की जाएगी। पानी के मामले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। मुज़ाकरात की कोशिश शुरू हो तो मुआहदा शिकों के मुताबिक देखना चाहिए। भारत खुद कई साल से दहशतगर्दी करवा रहा है। भारत को जारहियत का मुंहतोड़ जवाब मिला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शिकस्त खोरदा तकरीर की। आलमी मीडिया ने अफ़वाज पाकिस्तान की जुर्रत, कारकर्दगी और महारत को सराहा। मोदी और उसके कारिंदे इस वक्त बहुत तकलीफ में हैं। भारत ने पाकिस्तान में निहत्थे और मासूम शहरियों को निशाना बनाया। दुश्मन से मासूम शहीदों के लहू का बदला लेना ज़रूरी था। मोदी ने खत्ते के अमन को दाव पर लगाने की कोशिश की। भारत से मार्का जीतने पर पूरी कौम को मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं कि भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम ने मिसाली इत्तेहाद का मुजाहरा किया। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला दिए। भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम ने मिसाली इत्तेहाद का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने कभी जंग की ख्वाहिश नहीं की। हमने दुश्मन की मुसल्लत करदा जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने नहीं थे शहरियों को निशाना बनाया। जंग में भारत के खिलाफ फतह। गवर्नर हाउस में आज यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। यौम तशक्कुर में मिली नग़मों और आतिशबाजी से अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी हर साल 10 मई को यौम मारका हक मनाने का ऐलान किया है। पाक फौज जैसी फौज पूरी दुनिया में नहीं है। अवामी राय के मुताबिक हिंदुस्तान की फौज हमारी फौज के मुकाबिल नहीं। हमने हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम पाक फौज के साथ जान देने के लिए हाजिर हैं। पाक फौज जज्बा ईमान से सरशार। हमारा एक फौजी हिंदुस्तान के 10 फौजियों पर भारी है। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। नरेंद्र मोदी एक डरपोक शख्स है। पाकिस्तान का हुसूल कलमा तैयबा पर हुआ से कोई मिटा नहीं सकता। मसला कश्मीर एक बार फिर उजागर हुआ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं कि भारत ने जंग बंदी के लिए अमेरिका से रजू किया। हम खत्ते में हम चाहते हैं मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। ब्लूमबर्ग का भारत के खिलाफ चीनी तैयारों की अफादियत का एतराफ। रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में मगरबी हथियारों से मुतालिक नुक्ता नज़र तब्दील हो रहा है। J10 बनाने वाली कंपनी के शेयर्स की मालियत 7.6 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। चीन के PL-15 मिसाइल में भी मगरब की नज़रों में आगे आ गए। तरक्की पजीर ममालिक दिफाई हथियारों के लिए चीन का रुख कर सकते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR टैक्स दायरा बढ़ाने और आमदन में इजाफे पर इजलास। वज़ीर आज़म की आमदन के अहदाफ की जानिब तेज़ी से गामजन होने पर हुकूमती मौशी टीम की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि इस्तेदाद रखने वाले ऐसे अफराद और शोबे से जो टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स नेट में लाया जाए। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और शोबों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। टैक्स चोरों की मुआवनत करने वाले अफसरान एहलकारों का भी कड़ा एहतसाब किया जाए। टैक्स नेट में इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। टैक्स की शरह को कम करके आम आदमी पर बोझ को कम करना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना से मारूफ सनतकारों और बरामद कुनंदगान के वफ़द की मुलाकात निजी शोबे और सनती बरादरी से जारी मशावरती अमल का हिस्सा है। मुलाकात में हुकूमत के टैरिफ में इस्लाहत के प्रोग्राम पर भी बातचीत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ को इस्लाहत के अगले मरहले में शामिल किया जाएगा। बरामदात पर मबनी तरक्की पाकिस्तान के लिए एक तरजीह है। मौशी इस्तेहकाम और पायदारी के लिए बरामदात का फ़रोग़ वाहिद काबिल अमल रास्ता है। मईशत के हर शोबे को अपना किरदार अदा करना होगा।
हर शोबा किरदार अदा करेगा तो पाकिस्तान IMF प्रोग्राम से बच सकेगा। कौमी असम्बली इजलास, स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। पीपल्स पार्टी की शासी अमरी का पेश इलेक्शन तरमीम बिल 2025 कायमा कमेटी के सपुर्द। अली कासिम गिलानी को बिल पेश करने की इजाज़त। तिजारती तंजीमात तरमीम बिल 2025 ऐवान में पेश कर दिया गया। जुनैद अकबर ने पब्लिक अकाउंट्स चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। जुनैद अकबर ने अपना इस्तीफा चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के हवाले कर दिया। जुनैद अकबर कहते हैं कि यह ओहदा पार्टी की अमानत था। पार्टी की क़यादत हिदायत पर इस्तीफा जमा करवाया। PTI रहनुमा जुनैद अकबर के स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भी मुलाकात। खुशी की बात है कि बानी की बहनों को मुलाकात की इजाज़त मिली। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बहनों की बानी से मुलाकात होना ज़रूरी थी, उम्मीद है हो जाएगी। 6 वकला के नाम दिए थे। ज़हीर अब्बास चौधरी और सलमान सफदर अंदर जा चुके हैं। जुनैद अकबर का इस्तीफ़ा फिज़िकली मौसूल नहीं हुआ, लेकिन खबर आई है कि उन्होंने दे दिया है। अल्लाह ने करम नवाजी की कि भारत का गुरूर खाक में मिला। दुआएं कबूल हुई, कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। पाकिस्तान का जवाब पूरी दुनिया ने देखा और सुना, भारत ने महसूस किया। मेरे पास बानी PTI को जेल से निकालने का कोई लाहे अमल नहीं। बानी PTI की बहन अलीमा खान कहती है कि मेरे पास भी यही लाहे अमल है कि अदालत में केसेस लड़ सके। ग्रैंड अलायंस के कायदीन से मैंने और मेरी बहनों ने मुलाकातें की। अल्लामा नासिर ने यकीन दिलाया कि बानी PTI की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएंगे। बानी से मेरी मुलाकात 2 महीनों से नहीं हुई। पिछले दिनों मेरी बहनों की बानी PTI से मुलाकात हुई थी। मेरी बहनों को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर से मुताल्लिक पैगाम मिला था। अब भारत दोबारा हमले की जुर्रत नहीं करेगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि भारत ने दोबारा जुर्रत की तो फिर मार खाएगा। अफ़वाज पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ। पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ मिलकर लड़ी। हमारे आपस में लाख इख्तिलाफ़ात हों, दुश्मन के मुकाबले में हम सब एक हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे। मरियम नवाज़ ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन्स का मुआयना किया। मरियम नवाज़ ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत जारी मनसूबों का दौरा किया। मरियम नवाज़ ने प्रोजेक्ट्स के तामीराती मयार का भी जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने ज़ेर तामीर रोज़ निकासियाब के प्रोजेक्ट्स का भी मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स में मयार को यकीनी बनाने का हुक्म। जामशोरों में 1 लाख एक घर से 4 लाशें मिलने का मामला। वज़ीर दाखिला सिंध ने SSP जामशोरों से तफसीलात तलब कर लीं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ैल हसन लिजार कहते हैं कि जामे तहकीकात और छानबीन की बदौलत तफ्तीश को कामयाब बनाया जाए। कत्ल के असबाब जानने के लिए जदीद टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए। कत्ल की वारदात में मुलव्वस मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। माहिर तफ्तीशी अफसरान को तफ्तीश की जिम्मेदारी तफवीज़ की जाए। FIA कराची की हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। जमशेद रोड और तारिक रोड से हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान की शनाख्त हमजा सलीम और अकील अब्बास के नाम से हुई। मुल्ज़िम अकील अब्बास हवाला हुंडी के नेटवर्क के साथ मुंसलिक पाया गया। तर्जुमान के मुताबिक मुल्ज़िमान से मजमूई तौर पर 45 लाख रुपए बरामद। गैर मुल्की करेंसी की मद में 13,500 अमरीकी डॉलर बरामद। इसराइली फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी। मज़ीद 39 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक जबालिया के एक स्कूल पर बमबारी से 17 अफराद जाँ बहक हो गए। अल-मवासी के इलाके में कायम एक आरसी खैमा बस्ती पर हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा की सूरत हाल मज़ीद संगीन हो गई, जहाँ रोज़ाना दर्जनों शहरी चांद से हाथ धो रहे हैं, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने माइक हसन को कौमी क्रिकेट टीम का नया हेड कोच मुकर्रर कर दिया। कहते हैं कि आकिब जावेद को
डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस पर मुकर्रर कर दिया गया है। माइक हसन और आकिब जावेद पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की और कामयाबी में अहम किरदार अदा करेंगे। आकिब हेड कोच तलाश कमेटी में शामिल, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेलेक्टर भी होंगे। हेड कोच के लिए कई दरख्वास्तें मौसूल हुई, उनका जायजा लिया गया। और PSL 10 के बाकी मैचेस शेड्यूल। PSL मैचेस 17 मई से 25 मई तक खेले जाएंगे। बाकी मैचेस का आगाज़ रावलपिंडी से होगा। PSL का फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। PCB जल्द PSL का नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी करेगा।